हेलो। हेलो। यस सर। गुड मॉर्निंग, सबको बोलो ज्वाइन करेगा। सर ओके सर। सब लोग आ गया। कल सॉलिड वेस्ट पढ़ाया तुम लोग को। आज टुडे डिस्कस द एयर पॉल्यूशन। ओके, व्हाट इज एयर पॉल्यूशन? इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी रहेगा, ठीक है।
बताओ, एनीवन? क्या, व्हाट इज एयर पोल्यूशन? हेलो। यस सर। डिस्कनेक्ट हो गया था नहीं? जी सर। बताओ, व्हाट इज एयर पोल्यूशन, कोई बताओ। क्या है व्हाट इज एयर पोल्यूशन? Presence of pollutant in air, sir. Yeah, presence, which type of pollutants present in air? डस्ट पार्टिकल gas. सर। Harmful gases like carbon monoxide and harmful gases, sir. Okay. Smoke. Yeah, good. Presence of one or more air pollutants is such that in such as the which type of pollutants? Suppose industrial pollutants, which type of pollutants comes under the industries? बोलो। Question क्या बोले सर sir? Industrial pollutants, which type of pollutants from the industry in atmosphere? Industrial pollutant क्या हो सर सकता है? हार्मफुल गैसेस, सर Only हार्मफुल gas. गैसेस लाइक Only CO2, कार्बन gas. डाइऑक्साइड और टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्लीट और डस्ट। कंस्ट्रक्शन का इन द कंस्ट्रक्शन से कौन सा किस टाइप का पोल्यूटेंट्स आएगा? Solid waste आएगा sir. Only solid waste. The solid waste from the domestic something of hospitals, in the school, college, institutionals. जिसे हमने कल डिस्कस किया था, this solid waste. But industry से तो बहुत सारा dust, the cement dust, aggregate dust. This type of are all the solid particles. Okay, these type of solid particles. जो तुम्हारा ईयर जो डस्ट जो जो सब लोग ग्राइंडिंग होता है, जब तुम सपोज टाइल्स का काम होता है या तुम्हारा मोजाइक जब लगता है या जब भी तुम्हारा कोई ग्राइंडिंग का काम होता है कंस्ट्रक्शन में, तो उससे तो बहुत सारा डस्ट निकलता है ना. So these are the pollutants from the construction site. Cement dust in the batch from the batching plant. Okay. All these pollutants which are emitted directly from, suppose two types of air pollution. One is the pollutants, it is primary and secondary. How to define the primary air pollutant? Secondary कैसे define करेंगे? सो पॉल्यूटेंट जो प्रोडक्ट के बनने के टाइम पे, ड्यूरेशन के टाइम पे जो गैसेस या फिर जो पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उससे सर प्राइमरी पॉल्यूटेंट में गिना जाएगा। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कैसे आइडेंटिफाई करोगे? दिस इज प्राइमरी पोल्यूटेंट है, दिस इज सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। दिस प्राइमरी पोल्यूटेंट इज डायरेक्टली इमिटेड ना, प्राइमरी पोल्यूटेंट इज डायरेक्टली इमिटेड इन द एटमॉस्फेयर, बट सेकेंडरी इज नॉट। व्हिच टाइप ऑफ एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी पोल्यूटेंट? प्राइमरी पोल्यूटेंट तो एग्जांपल बहुत सारा है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी गैस होगा डायरेक्टली जो एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाएगा। दीज आर द प्राइमरी सेकेंडरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट वेस्ट मटेरियल को बर्न करने से या फिर
सर ओजोन हाइड्रोकार्बन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है। Okay. So these are the through the any places. So किसी से मतलब ये हो के जाता है ना, ये मतलब डायरेक्टली इमिट नहीं होता है सेकेंडरी। तो कोई एग्जांपल सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ओजोन सर। या और सर पेन, परऑक्सी एसिटिलीट नाइट्रेट। सर पेन, सर PAN। नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं होगा। Secondary pollutants, this is ozone. This is a form of the hydrocarbons, that is nitrous oxide, okay, NO2. So these are the secondary। नहीं, बताओ। और any other? फॉर्मल्डिहाइड सर। Yeah. What is the difference between the primary air pollutant and secondary air pollutant? How to define the, how to comparison primary versus secondary pollutants? इसमें क्या होता है, दिस इज डायरेक्टली इमिटेड इन एटमॉस्फेयर, बट secondary air pollutant not directly emitted in the atmosphere due to the result of the chemical or physical interaction between the primary pollutants। यही होता है ना, then mix in the atmosphere, these pass through the primary air pollutant, then mix the atmosphere। And second thing, this primary air pollutant direct control through the reduction on anthropogenic emission, this is direct control, okay, but in the secondary process, complicated control process, it's not direct control, understanding the interpreting the chemical reaction leading there the generation, this is the secondary pollutant। okay, और बताओ कोई तुम लोग कोई डिफरेंस? इसमें तुम्हारा जो गैसेस हो जाता है CO2, सॉरी CO, NOx, सल्फर डाइऑक्साइड, पार्टिकुलर मैटर। तो पार्टिकुलर मैटर इज द कल डिस्कस किए थे हम लोग PM10 and 2.5। तो ये क्या है, प्राइमरी या सेकेंडरी है? बताओ, दिस इज पार्टिकुलर मैटर, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ द प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स? इसमें कौन सा है PM पार्टिकुलर मैटर, इन कम्स विच पॉल्यूटेंट्स, प्राइमरी या सेकेंडरी? बताओ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताओ, नहीं? This is the particular matter is the example of the primary pollutant।
because this is the directly emitted in the atmosphere. Okay, तुम लोग कल डिस्कस किए थे ना, बताया था ना कि PM 2.5 this is a very fine particles, this is the move in the air. Okay, then this is the directly harm to the human bodies. They through the breath in the enter your body, then harm the your body. Okay, so what is the harmful effect of air pollution on human health? This suspended particulate matter, this is I discussed. Okay, these are the suspended particulate matter. They are the solid particles like dust, smoke, fumes, and liquid particles like mist and fog. What is the fumes? कोई बताएगा क्या फ्यूम क्या होता है? ईंधन होता है सर, मतलब And mist and फ्यूल का हिंदी fume और smoke, सर फ्यूम धुआं होता है। yeah, a smoke. Solid particles like dust, smoke, fumes. ये भी तो solid particles ही है ना, fumes वो ये सब कि नहीं? अगर fumes अगर धुआं जो तुम बात कर रहे हो, अगर वो कहीं सेटल होता है तो क्लियर बनता है ना? तुम लोग सपोज यस सर, लेयर बनाता है। हाँ, ठंड के दिन में क्या होता है, तुम लोग कहीं वहां सपोज कहीं लकड़ी जल रहा है, वहां हम लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, आफ्टर सम टाइम देखो सबका फेस पे काला काला हो जाता है, ऐसा दिखता है। यस सर। So this is the fumes, smoke. स्मोक क्या होता है? स्मोकिंग करता है तुम लोग कोई? नो सर। जो उसका धुआं निकलता है और जो लकड़ी जलता धुआं, उसमें क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस है? डिफरेंस तो है सर। क्या? क्या डिफरेंस बताओ सर में ज्यादा कार्बन कंटेंट होता है, या और स्मोक में अदर गैस रहता है सर। स्मोक में अलग रहता है। ओके, देन लिक्विड पार्टिकल उसमें टबैको जलता है सर। या गुड टबैको जलता है, वही डिफरेंस है, ठीक है। फ्यूम्स में धुआं, जो किसी का बर्निंग, और then next is these are the released during the dust storm. Actually mist and fog. What is the mist and fog? Mist क्या है? बोलो, मिस्ट को क्या बोलते हैं? कोहरा सर। या गुड, वही बोलो मिस्ट एंड फॉग। तो मिस्ट कैसे बनता है एटमॉस्फेयर में? सर थिक लेयर ऑफ क्लाउड के कारण। या थिक लेयर ऑफ क्लाउड, कोहरा।
कोहरा का प्रोड्यूस कैसे होता है? कोहरा जो बनता है ऐसा बोलता है कि हाँ बहुत कोहरा है, एयर क्वालिटी इज वेरी लो। इसका कॉजेस क्या है? कैसे कोहरा बनता है? सर लो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के कारण। या लो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी के कारण। और पॉल्यूशन कारण नहीं? सर वो भी इन्वॉल्व रहता है। सबसे ज्यादा इन्वॉल्व वही रहता है, समझे? निस्ट में यस सबसे सर। ज्यादा इन्वॉल्वमेंट फिजिकली रहता है, जो बर्न होता है नियरेस्ट, जो पॉल्यूशन धुआं निकलता है उसी से कोहरा प्रोड्यूस हो जाता है, मिस्ट। ओके, these are released during the dust storm, smoke, burning of garbage, fossil fuels. This type of air pollutants will directly affect on the human health. It affect breathing, respiration, causes carbon disease, lungs problem, affect still birth, dead and born. This type of gas is very harmful. अभी देखो, जब दिल्ली में जब भी फॉग बनता है, जब भी फॉग क्रिएट होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जब वहां पे ऑक्सीजन लेवल बहुत, ऑक्सीजन का क्या, हम लोग को वहां पे ऑक्सीजन बार खुलता है दिल्ली में। जो पिछले बार सबसे ज्यादा अगर फॉग ज्यादा हुआ था तुम्हारा फॉग, तो वहां पे क्या हो गया था, जब विजिबिलिटी इज 0, दिस इज 550 प्लस हो गया तुम्हारा वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो उससे क्या हुआ था, दिस इज डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ। Human health is now is nose itching, this is throat itching, eye itching. These are directly impact on this type of the human bodies. Okay, so this the visibility is 0, मतलब low, मतलब सामने सामने के लोग 1 मीटर डिस्टेंस भी नहीं दिख रहा था। तो लोग वहां पे कैसे सर्वाइव करेंगे दिस टाइप ऑफ पॉल्यूशन में? तो वहां पे कुछ टाइम के लिए ऑक्सीजन बार खुला के, जो आप लोग जाके कुछ फ्रेश ऑक्सीजन ले सके, क्योंकि वो ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा था, इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो गया था। So due to the effect, this is the this type of effect in birth, dead and born. Okay, आदमी का वो जान भी ले सकता है, और ये जो जन्म लेता है उस पर भी डायरेक्टली इफेक्ट करता है। दिस इज अ वेरी डेंजरस सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर। ओके, क्योंकि इसमें डायरेक्टली जो भी है डायरेक्ट तुम्हारा बॉडी में इंटर करेगा, डायरेक्ट, नॉट इनडायरेक्ट। Oxide of sulfur, SO2, it is give colorless gas having tasteless threshold at about 0.3 ppm, and it is released due to the combustion of the oil coal in power station and automobiles. Okay, and this is affect breathing, respiratory illness, that breakdown of the lungs defense cause. Okay, and then now third one is the oxidized carbon, CO2. So this is the colorless, tasteless, odorless gas, atmospheric concentration. It is the involved due to the incomplete combustion of coal, bile, and fuel. Okay, and that it leads to the cardiovascular disease combined with the hemoglobins 200 times. Okay, faster the oxygen form, and it results in this type of disease, create this type of disease. This is the headache, dizziness, nausea, heart palpitation, difficulty in the breathing. Okay, this type of very issues are problems. Oxidize of nitrogen. Okay, this is a reddish brown highly activated gas, order threshold at 0.2 ppm. It is immediately from high temperature combustion in automobiles and from the thermal power station. Hydrocarbons, we all are known. These are being released from the exhaust automobiles. They lead to the irritation of the eye and respiratory. Okay, and this is the, in order to and define quality and the quality of air in a particular area, this is a parameter term as the AQI. This is the air quality index. This is a very important. अगर तुम एयर पॉल्यूशन पढ़ रहे हो तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, एयर क्वालिटी इंडेक्स।
ओके, क्योंकि डे टू डे एयर क्वालिटी इंडेक्स इज चेंज्ड। आज का AQI कितना है तुम लोग का जहां पे हो? जो जो लोग तुम लोग हो वहां पे AQI कितना है आज? अभी तो बिहार में सबसे ज्यादा AQI गिरा हुआ है क्योंकि दिस इज फॉग, वहां पर सबसे ज्यादा फॉग है। सर रांची में 117 है। तो बहुत अच्छा है, तो चाईबासा का बहुत खराब है। चाईबासा का तुम्हारा 193 है, रांची का 117। यस सर। वेरी क्लीन। Okay, the dispersion of air pollutants in the atmosphere. Dispersion of air pollutant into the atmosphere depends upon prevailing wind and temperature and presence condition. And the wind depend on the wind. Wind speed is measured by the anemometer, and velocity of its height can be found using okay. This is temperature. So what is the role of temperature? And सर temperature. टेम्परेचर डाउन रहता है, हाँ बोलो। टेम्परेचर डाउन रहता है सर तो स्मोग और मिस्ट ज्यादा होता है। ओके, और इंक्रीज करेगा तो थोड़ा क्लियर रहेगा सर विजिबिलिटी। it is clear. Good. That is the temperature of the air decreases with increases in height above the surface of Earth is troposphere, and the rate of which is decrease with increase is height is termed as the environmental lapse rate, ELR. Okay, this is the ELR. This is the varies from height to height, can be computed separately for different height, but if not given, it may be assumed to approximately 6.5 degrees Celsius is per kilometer. Okay, and this is a very important. Temperature decrease with the height in troposphere since the main heat source is solar radiation, which is the absorbed measured normally at the ground level. Usually is the ground level. This is the variation of temperature in different layer of atmosphere as I follow. This is the graph. Okay, इसमें समझ में आ रहा तुम लोग को? This is the height 10, 20, 30 this is kilometer in the, and this is the temperature. This is minus 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 minus 100 positive. ये तुम लोग समझ में आ रहा है? जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होता है तो उससे क्या और डिफरेंस होता है? सर ये एक्स एक्सिस में क्या बना हुआ है? एक्स एक्सिस तुम्हारा हाइट है, सर वो तो वाई एक्सिस में है। सॉरी वाई एक्स एक्सिस तुम्हारा टेम्परेचर है। जैसे टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस माइनस 80 है, 70, 60, 50, 40, 30, 20 दिस इज 10, 10, 20, 30 इज पॉजिटिव। दिस इज द टोपोस्फेयर जो हम लोग का भी है, जो हम लोग इस पे उस कौन सा स्फीयर पे है? थर्मो या टोपो? टोपो। या टोपोस्फेयर पे। ओके, तो दिस जस्ट जैसे जैसे तुम्हारा टेम्परेचर क्या इंक्रीज होगा, दिस इज the temperature of air increases in a stratosphere and is almost same as that temperature on the earth's surface at a stratosphere. Stratopause, स्ट्रेटोस्फेयर में तुम्हारा क्या होगा, जैसे इंक्रीज करेगा तो फिर टोपो से स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचने में कितना टाइम लगता है? जो एरोप्लेन जब फ्लाइट करता है तो वो कौन सा किस में करता है, कौन सा स्फीयर पे?
ट्रोपोस्फेयर में ही करता है सर। ट्रोपोस्फेयर में ही। उसका हाइट कितना रहता है किलोमीटर? ट्रोपोस्फेयर का अप टू 12 किलोमीटर होता है और स्ट्रेटोस्फेयर उसके ऊपर अप टू 50 किलोमीटर होता है। Good. The warm due to the absorption of UV rays from the sun by oxygen and by O2 ozone is the layer. This is the earth and its troposphere. फिर तुम लोग न्यूमेरिकल में बाद में समझा देंगे, सबको न्यूमेरिकल कुछ कुछ है, बट तुम लोग को न्यूमेरिकल आएगा नहीं। ये पॉलिसन प्लस तुम लोग को थ्योरी पार्ट ही है कि हाउ टू कंट्रोल। सर सेकेंड इंटरनल में ही सब आएगा। सेकेंड इंटरनल में ये सब तो नहीं आएगा, तुम्हारा कुछ कुछ लिखने का है तो एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन से ही आएगा, ठीक है? यस सर। तुम लोग राइटअप है ना, कुछ क्वेश्चन हाँ सर, एमसीक्यू नहीं, भी है, राइट भी करना है। अच्छा एमसीक्यू कुछ है नहीं, मतलब दोनों पार्ट में है सर। अच्छा तो उसमें शायद सुनने के जूम पे तुम लोग क्वेश्चन दिखाएंगे तब लोग लिखोगे। पता नहीं सर, पहली बार ऐसा हो रहा है। तो भी होगा। The second one is the unstable environment, super adiabatic environment. It is the type of environment in which rate of decrease of temperature with height for air is more than that of pollutants. This is ARR. This is the height and temperature. A stable environment. So how to consider the stable environment? कि हमारा environment stable है, इस टाइम में हमारा environment stable रहता है, कभी रहता है environment stable? सर ELR और ALR डिफरेंस बताइए सर। ELR और ALR का? यस सर। ELR में क्या होता है कि जो तुम्हारा टेम्परेचर है, ठीक है, वो तुम्हारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है। टेम्परेचर फॉर द एयर इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर अगेंस्ट ALR में क्या होता है, दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है तुम्हारा टेम्परेचर। ठीक है, इसमें एक डिफरेंस है कि जब तुम्हारा टेम्परेचर अगर लो हो रहा है दिस इज कंडीशन ऑफ ALR, और जब तुम्हारा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है दिस इज कंडीशन ऑफ द ALR। ये माइनर डिफरेंस है, मतलब माइनर तुम लोग इसको बोल सकते हो, दिस इज द माइनर डिफरेंस ऑफ द ALR एंड ALR समझने के लिए। ऐसा दैट ऑल आर डिपेंड ऑन द पॉल्यूटेंट्स। अगर जितना ज्यादा पॉल्यूटेंट होगा उसमें के टेम्परेचर क्या होगा, डाउन ही होगा ना। यस। और जैसे जैसे तुम्हारा पॉल्यूटेंट्स कम होगा दैट इज द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। So this is a small difference in the ALR and ALR. तो लोग अटेंडेंस कैसे होता है? QR कोड LMS पे। वो हम तो नहीं देखिए हैं, ठीक क्रिएट कर लेंगे, तुम लोग सबका बना देंगे सबका। नाइनटीन लोग 18 लोग हो ना सर। व्हाट इज द नेचुरल इन्वायरमेंट? देखो इसमें क्या लिया है, नेचुरल इन्वायरमेंट में जैसे ग्राफ शो कर रहा है, जैसे टेम्परेचर एंड हाइट, देयर इज अ टाइप ऑफ इन्वायरमेंट इज ALR इक्वल टू ALR, द दोनों बोथ आर द सेम, नॉट पॉल्यूशन, कोई पॉल्यूशन भी नहीं है और तुम्हारा इन्वायरमेंट क्लियर है, दिस इज ALR इक्वल टू ALR। ओके, ऑन द डिपेंड ऑन द हाइट and depend on temperature and depend on the pollutants, so both are the same. Inversion
environment, it is an usually case of this temperature of environment increases with increase in the height in troposphere. Instead, is the decreasing. Okay, and the rate of increase the temperature with height in this case showing the term or negative lapse rate. Okay, in this case, warmer air less over the clouded air. Okay, the pollutants below leading the represent the highly stable environment. In C, the negative lapse rate is the air and normal lapse rate is the pollutants. तो क्या हो सकता है inversely proportional to pollutants inversely to the air. अगर pollutants increase होगा तो air quality, air पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? Air is the negative way या positive way? Goes through the डिक्रीज होगा सर एयर क्वालिटी. yeah, air quality is decrease. This is pollutant की increase. तो air flow जो wind flow भी होता है वो भी तुम्हारा decrease हो जाता है. अगर तुम्हारा ज्यादा अगर pollutants नहीं है environment में तो तुम्हारा air क्वालिटी गुड रहता है, उसमें फ्लो ऑफ एयर इज गुड. जैसा तुम लोग फील किए हो. सर समर टाइम में सबसे ज्यादा हवा क्यों रहता है? ठंड टाइम में बहुत कम रहता है एयर, मतलब एयर फ्लो. ऐसा तुम लोग कभी गेस फील किए हो? क्या रीजन क्या होता है? टेम्परेचर के कारण सर. दिस इज ड्यू टू द टेम्परेचर. ओके, ठीक है, तुम लोग फिर से अगेन ज्वाइन करो. ठीक है. यस सर.